number 8. First exercise is 8.1 and the first question is the angles of quadrilateral are in the ratio 3:5:9:13. Find all the angles of this quadrilateral. You know about the angles of property of quadrilateral? What is the angles of property of quadrilateral? Angles of property is all sum of all the angles is 360. this करेंगे. Let first angle is equal to 3x, second angle 5x, third angle 9x and fourth angle 13x. तो 3x plus 5x plus 9x plus 13x is equal to 360 degree. Angle sum property of quadrilateral. 3 plus 5 8 plus 9 17 plus 13 30. 30x is equal to 360 degree. X is equal to 360 upon 30. तो x की वैल्यू है 12. तो फर्स्ट एंगल कितना हो गया? 3x है, 3 into 12 36 डिग्री. सेकेंड एंगल 5 into 12 60 डिग्री. थर्ड एंगल 9 into 12 108 degree and fourth angle 13 into 12 that is 36 by 156 degree. Okay, you can check also. Take the sum of all these angles. This will be 360. If it is 360 then it is right. Is it right? तो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन. In the second question, you have to prove that if the diagonals of parallelogram are equal, then you have to show that it is a rectangle. मतलब एक पैरेललोग्राम के अगर डायगोनल्स इक्वल हो तो आपको प्रूव करना है इट विल बी ए रेक्टेंगल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर बनाई हमने ABCD. इट इज ए पैरेललोग्राम. तो ABCD इज ए पैरेललोग्राम एंड व्हाट इज गिवन? डायगोनल्स आर इक्वल. सो AC इज इक्वल टू BD. AC इज इक्वल टू BD. क्लियर? Now आपको प्रूव क्या करना है? ABCD is a rectangle. You have to prove that ABCD is a rectangle. It is a parallelogram and you have to prove that it is a rectangle. अब रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए आपको क्या करना है? पैरेललोग्राम का अगर एक एंगल भी 90 का प्रूव कर देते हो then it becomes a rectangle. तो आपको क्या करना है? इन ट्रायंगल ABD and ट्रायंगल ABC. कौन सी लेनी है हमने? ABD and ABC. This one and this one. ठीक है? क्या क्या इक्वल है? AD is equal to BC. क्यों है ये? Opposite sides of parallelogram. Opposite sides of parallelogram are always equal. AB is equal to AB. AB is equal to AB. Common. Is it clear? Then BD is equal to AC. BD is equal to AC. It is also given. So triangle ABD is congruent to triangle ABC by which criteria? ये इक्वल है इसके, ये कॉमन है और ये साइड तो SSS. All the three sides of first triangle are equal to all the three corresponding sides of second triangle. So ये क्या हो जाएगा? SSS. Therefore, angle BAB is equal to angle CBA. क्या है ये? CPCD. क्योंकि ट्रायंगल का तीन पार्ट्स इक्वल हैं, बाकी जो बचे हुए तीन पार्ट्स हैं वो भी क्या है? ऑटोमेटिकली इक्वल हैं. सो अब बट एंगल BAB प्लस एंगल CBA इज इक्वल टू 180. वो है ये को इंटीरियर एंगल्स. इन दोनों का सम 180 है और ये दोनों इक्वल हैं. इसका मतलब क्या हो गया? सो BAB is equal to CBA is equal to 90 degree. Therefore, one angle of parallelogram, if one angle of parallelogram is 90 degree, then ABCD is a rectangle. Hence proved.
Hence, in the third question of exercise 8.1, you have to prove, show that if the diagonals of quadrilateral bisect each other, at right angles, ये जो प्रॉपर्टीज की है उसको यूज होंगी, then it is a rhombus. Diagonals means कौन से हो गए, AC and BD. These bisect each other, यानी कि एक अगर ये O पर करते हैं तो AO is equal to OC. I have written ABCD is a quadrilateral. AC and BD bisect each other at 90 degree. AO is equal to OC. Similarly, BO is equal to OD. ठीक है, और at right angles. So all these angles मतलब क्या है, सभी के सभी एंगल क्या है, ये 90. तो एंगल 1 is equal to, कोई भी लगा हुआ है जरूरत नहीं, एंगल 1 is equal to 90, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पर. ये सारे एंगल्स क्या है, 90 डिग्री के. ठीक है, यू हैव टू प्रूव दैट इट इज ए रोम्बस. मतलब कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, उसके अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर, सिर्फ बाइसेक्ट नहीं, अगर 90 पर बाइसेक्ट कर रहे हैं, देन इट इज ए रोम्बस. तो आपको प्रूव करना है एबीसीडी इज ए रोम्बस. रोम्बस प्रूव करने के लिए क्या चाहिए, ऑल द साइड्स आर इक्वल. रोम्बस में क्या होता है प्रॉपर्टीज, अगर हम किसी क्वाड्रिलेटरल की सभी साइड्स को इक्वल प्रूव कर दें तो इट बिकम्स अ रोम्बस. तो सबसे पहले हम क्या करें, इन दो ट्रायंगल्स को कॉम्प्लीट प्रूव कीजिए. ठीक है, इन दोनों को इन ट्रायंगल कौन से हो गए, AOD, कोई भी ले, चाहे ये भी ले सकते हो आप, आपकी इच्छा, कोई दिक्कत नहीं है. AO ये ले लीजिए, AOB एंड ट्रायंगल COD. AB आपको क्या 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 दिया हुआ है, ये AO इज इक्वल टू OC. AO इज इक्वल टू OC. गिवन BO इज इक्वल टू OD. BO इज इक्वल टू OD इज आल्सो गिवन. एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. क्या है ये, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. देयरफॉर ट्रायंगल AOB is congruent to triangle COD by SAS. CPCD से क्या मिला, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए, तो CPCD से हमें क्या मिल गया, हमें रोम्बस प्रूव करना है. तो साइड AB is equal to CD. So AB is equal to CD by CPCD. इसको दे दीजिए नंबर 1. अब AB is equal to CD हमने प्रूव कर दिया. अब हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे. ठीक है, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल BOC क्या गिवन है, AO is equal to OC. AO is equal to OC given. OB is equal to OB. कॉमन. थर्ड पार्ट क्या लेंगे आप, क्योंकि हमने क्या किया, इन दोनों ट्रायंगल्स को प्रूव करना है. ये इसके हो गया और यहां से CPCD से आपको ये इसके बराबर हो गया. ठीक है, ये कॉमन हो गया. थर्ड पार्ट क्या लेंगे, ये एंगल दोनों 90 के गिवन है हमें. ठीक है, जिसका मींस मान लीजिए ये एंगल, ये लीजिए 2 और 3. एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, 90 डिग्री ईच. देयरफॉर ट्रायंगल AOB एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, 90 डिग्री ईच, क्योंकि हमें ये गिवन है एट राइट एंगल्स. सो ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC. अब कौन सा क्राइटेरिया लगा, ये साइड अगेन SAS. Therefore AB is equal to BC. नंबर 2 एंड ये CPCD से हमारे पास आया. दो बार कर दिया आपने, एक बार AB is equal to CD कर दिया और दूसरी बार AB is equal to BC कर लिया. तीसरी बार आपको प्रूव करने की जरूरत है, सिर्फ आप लिखेंगे सिमिलरली वी कैन प्रूव that AB is equal to AD. Number 3, from 1, 2 and 3, AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD. So ABCD is a rhombus, because we have to prove that it is a rhombus, and if all the sides of any quadrilateral are equal to each other, then it becomes rhombus. Hence proved. In the fourth question of exercise 8.1, show that diagonals of a sphere are equal. मतलब क्या है कि सिर्फ आपको क्या दिया हुआ है कि it is a sphere, और कुछ नहीं दिया. बाकी जो सारी चीजें आपको प्रूव करना है, सिर्फ और सिर्फ दिया हुआ है कि it is a sphere. तो ABCD is a sphere. प्रूव क्या
डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, मतलब आपको प्रूव करना है AC इज इक्वल टू BD, देन बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, मतलब आपको ये भी प्रूव करना है कि ये बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि BO इज इक्वल टू DO ये भी प्रूव करना है, AO इज इक्वल टू OC ये भी प्रूव करना है। तो इसमें आप निशान नहीं लगाएंगे, सिर्फ मैं आपको करके दिखा रही हूँ। निशान लगाने का मतलब क्या हो जाता है कि ये गिवन है, जो भी आप साइन ऑफ सिमिलरिटी लगाते हो अगर फिगर में, वो शो करता है इट इज गिवन, ठीक है। तो आप पहले जब जो चीज प्रूव करनी है वो आप गिवन में नहीं लिखोगे इसमें, तो आपको प्रूव करना है AO इज इक्वल टू OC, DO इज इक्वल टू OD, और क्या करना है प्रूव एट राइट एंगल, यानी कि ये जो एंगल है ये भी सारे के सारे आपको 90 डिग्री के प्रूव करने हैं, ठीक है। इसके लिए आप सबसे पहले बड़ी दो ट्रायंगल्स लेंगे BAD एंड CAB। इन ट्रायंगल्स BAD एंड ट्रायंगल ABC क्या क्या दिया है आपको, AD इज इक्वल टू BC, ठीक है, साइड्स ऑफ ए स्क्वायर, साइड्स ऑफ स्क्वायर, देन AB इज इक्वल टू AB कॉमन, AB और क्या हो जाएगा थर्ड, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, वैसे एंगल A क्या होता है DAB, कंप्लीट लिखो क्योंकि यहाँ पर कई एंगल बन रहे हैं, DAB इज इक्वल टू CBA या ABC 90 डिग्री, therefore triangle DAB is congruent to triangle CBA, किससे हुआ ये SAS, सो क्या प्रूव हो गया हमारा AC इज इक्वल टू BD, फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया बाय सिंप्लिसिटी, फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो गया कि AC इज इक्वल टू BD। अब हमें प्रूव करना है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट इच अदर, और उसके बाद प्रूव करना है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं वो 90 पर करते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, इन दो ट्रायंगल्स ले लो ऑपोजिट, इन ट्रायंगल AOB को ये भी ले सकते हो आप, कोई भी ले सकते हो, इन ट्रायंगल AOB हमें बाइसेक्ट AOB और COD ले लीजिए, AOB एंड ट्रायंगल COD, AB इज इक्वल टू CD गिवन, हाँ जी, ये अब ये एंगल देखिए, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, टू है ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, एक साइड इक्वल हो गई और दो एंगल्स हो गई, तो और साइड उनके बीच वाली हो गई, देयरफॉर ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD बाय ASA, टू एंगल्स, ये ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू COD ASA क्योंकि टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड, two angles and included side of first triangle are equal to two angles and included side। अब इससे हमें क्या मिलेगा, दो ये वाले दोनों ट्रायंगल हमने कॉम्प्लीट कर दी, सो AO इज इक्वल टू OC एंड BO इज इक्वल टू OD बाय सिंप्लिसिटी, ठीक है। ये हो गया आपका सेकंड पार्ट में बाइसेक्ट ईच अदर। अब हमें करना है प्रूफ, क्या करना है कि ये बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पर, राइट एंगल पर प्रूव करने के लिए कॉन्जिक्यूटिव ट्रायंगल्स को कॉम्प्लीट प्रूव करेंगे, ठीक है, इन दोनों को कॉम्प्लीमेंट प्रूव करेंगे। उसके लिए क्या क्या है हमारे पास, ये इसके इक्वल क्योंकि हमने प्रूव कर दिया, ये है कॉमन और ये ऑलरेडी हमारे पास है, ठीक है। तो अब आ जाएगा इन ट्रायंगल, थर्ड पार्ट, ये सेकंड पार्ट होता है, थर्ड पार्ट, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल BOC, AB is equal to BC, it is given BO is equal to BO common, then AO is equal to OC, AO is equal to OC, AO is equal to OC, क्या है ये हमने पार्ट सेकंड से किया, पार्ट 2, therefore triangle AOB is congruent to triangle BOC SSS, therefore अब क्या आ जाएगा, दिस एंगल, ये देखो मैं इसको ले लेती हूँ 5 और इसको ले लेती हूँ 6, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 बाय सिंप्लिसिटी, बट 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 180 बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर, क्योंकि ये एक लाइन है और दोनों एंगल्स का सम जो है वो क्या हो जाएगा 180, तो 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 180, सो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 इज इक्वल टू 90, ये आपका है थर्ड पार्ट। अब we can say from 1, 2 and 3
3 from 1, 2 and 3. Diagonals AC and BD are equal and bisect each other at 90 degree as proved.